Hey guys, welcome back again to my channel. So if you don't know me myself, Dr. Pratik Rajendra Wankhede, and I have secured an All India rank of 1644 in NEET PG 2023. And yeah, that too in my first attempt along with the internship. So I want you all to see this video till the end because it contains all my raw reactions to all the grand tests which I gave before my NEET PG. So yeah guys, as you all might be knowing that I vlog a lot. So randomly one day I started recording my reactions to the GT, and today I am leaking all that footage to you all. So the point is, before watching the bright side of anyone's story, let me tell you there are bad days, frustrations, dull days, and of course no motivation days in the PG preparation, and you all will go through that. So if you will see this video, you can correlate that part. I want to address you that I do accept that it is not an easy task, but today standing here, let me tell you, it is all worth doing. Okay, so the main important message of this video is I want to help you all guys, and it would be my pleasure if I succeed in making your journey little easy through this YouTube channel. At the end, I will address you all the important take home points which you should apply in your preparation. And thank you. Let's not waste time and let's dive into the raw reaction video. सो गाइस ये GT नंबर 6 है मेरी, और इसमें देखते हैं अभी मतलब मार्क्स कितने आएंगे, करेक्ट कितने होंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मुझे लगता है कि 165 करेक्ट होने चाहिए, तो देखते हैं 165 में से एटलीस्ट 150 करेक्ट होने चाहिए। और So in college, all of my juniors used to ask me, Bhaiya, how are you giving the GTs? What were your scores? How are you coping up with the low scores of GT? Like, how were you analyzing and modifying your preparation according to the scores of GT? These were all the questions, and through this video, I will try my best कि आप मेरा reaction ही देख लो, and then you will get an idea. अरे ये same तो हमारे साथ भी हो रहा है. गाइस, जीटी देने का सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि गिव द जीटी सीरियसली एंड नॉट टेक द स्कोर्स ऑफ जीटी सीरियसली। तो आपको जो 3-3.5 घंटा आप बैठे हो वो एकदम सीरियसली फोकस होके क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई करना है। बाकी रिजल्ट कुछ भी आए उसका लोड नहीं लेना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मस्त एप्पल खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, सेव ममरा खा रहा हूँ, तो ऐसे जीटी कभी नहीं देना है, ठीक है। तो अभी मैंने GT नंबर 7 जो है मैरो की 2022 की वो दी है। बहुत ख़राब पेपर था, बहुत ख़राब। और अभी मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस एग्ज़ाम, लेट्स सी। सो आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में हो ऐसा वाइब स्कोर पहले अभी करता क्रिएट हूँ। करना है, देन गो फॉर इट। 113 करेक्ट हुआ है। बहुत ख़राब जा रहा है भाई लाइफ। सो टुडेज डेट इज़ 9th of December 2022 एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 6:37 PM। अभी मैंने GT दिया है, GT नंबर 10। सो लेट्स सी हाउ इज़ द स्कोर। 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आई हैव नॉट हर्ड, मतलब वो आपके नीचे से गया भी नहीं है, बस सब्जेक्ट पता चल रहा है लेकिन क्वेश्चन कौन से कहाँ से उठा है वो नहीं पता चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या हुआ है। आई होप इट व्हाट बूस्ट इट गिव मी। Don't have any idea how I am feeling right now.
गूज़बम्स आ रहे हैं। ओके, ज़्यादा खुश नहीं होना है। जो टॉपर है रोहन करके, उसके 186 करेक्ट हुए हैं। So today's date is 19th of December and right now the time is 7:09 p.m. It was quite on moderate to severe level difficulty. काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना आइडिया आया है। Let's see what is the score. What is score? $142 correct. Not good, not bad. या पिछला जीटी में स्कोर was almost 554 and right now it is 512. तो 550 से 512 पे आए ले अपने। ठीक है, ऐसे तो खराब है देखा जाए तो। सो टुडेज डेट इज़ 6th of January, दोपहर के 12 बजे हैं और मैंने INI सेट रिकॉल की एग्ज़ाम दी है, फर्स्ट सेशन 2022। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। डिप्रेसिंग लग रहा है मुझे। So today's date is 10th of January 2023 and 1:35 हुआ है और INI सेट रिकॉल सेशन 2 जो था वो एग्ज़ाम दिया है। देखते हैं क्या मार्क्स आए। ऐसे बहुत अजीब एग्ज़ाम थी, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स ही थे। देखते हैं क्या होता है। करूँ सबमिट। नाइस। nice. 145 करेक्ट हुआ है। गुड, तो ये काम किया है। दिस हैज़ वर्कड। ऐसे हाईएस्ट 181 है एनोनिमस। So today's date is 8th of Feb, 12:46 p.m. So I just gave GT 14 दिया and I realized मैंने almost 20 days के बाद ये GT दी है और मुझे ऐसा लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो मैं एकदम ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ना एकदम हेजी याद आ रही थी। इवन दो आई हैव स्टडीड दैट इन द लास्ट 5 days या 8 days। तो in the run of covering more topics in one day in 12 to 14 hours जो मैं पढ़ रहा हूँ इतना स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आ रहे, ये भी हो सकता है, 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 ऐसा है। और बहुत सारे टॉपिक्स तो नए पढ़ने पड़ेंगे ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा है अभी। सो लेट्स सी। तो इट इज़ डिग्रेडिंग ऐसा देखा जाए तो। 90 परसेंटाइल आया है, 90। तो अगेन इट ड्रॉप्ड। मेरा 94 या 95 परसेंटाइल आया था GT 13 में, तो अभी 90 हो गया है। सो ख़राब आया है इन शॉर्ट। सो टुडेज डेट इज़ 12th of February एंड आज डैम्स की GT के लिए मैंने सब्सक्राइब किया था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो पता नहीं सर्वर डाउन था या बिज़ी था, वो चालू ही नहीं हो रहा था। तो मैंने मैरो की ही GT दी। क्वेश्चन बहुत इजी थे और काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी थे। इतना समझ में आया है कि रिवीजन को वापस रीइंफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे वाले डाउट होते हैं ना, यार ये तो नोट्स में है लेकिन मेरे को ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला वो याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे विजुअल मेमोरी काम आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो वो अगर आपने पढ़ा हो तो एक ही पन्ने पे 50S राइबोसोम इनिबिट हो रहा है, एक जगह पे 30S इनिबिट हो रहा है,
तो आपको अगर आइडिया हो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ऊपर था तो 50 वाले में होगा, नीचे वाले में फ्लोरोक्विनोलॉन था तो वो, तो देयर द विजुअल मेमोरी हेल्प्स। लेकिन जो समझने वाला पार्ट है वो आप मैरो से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, या डैम से पढ़ो, या प्रेप से पढ़ो। एक बार अगर आपने वो समझ लिया है तो वहाँ पे विजुअल मेमोरी का कोई काम नहीं है। इन शॉर्ट, जो गोखने वाली चीज़ है, रिकेट्स या के एजेंट्स हो गए, वेक्टर्स हो गए, वैक्सीन्स के स्ट्रेन्स हो गए, या फिर कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो गया, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द विजुअल मेमोरी। सो दैट इज़ वन पॉइंट आई गॉट टू नो। सो आई विल ट्राई कि मैं सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो बैठ के अभी लिखूंगा, क्योंकि वही जो है वो 10-15 क्वेश्चन का डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी जो एक बार घुस गया है वो तो राइट ही होने वाला है। नाउ लेट्स चेक आवर स्कोर। बहुत बड़बड़ कर लिया। आर यू रेडी? 151. I need to work. So it's just 6 days before my exams. So today's date is 26th of February 2023 और 5 मार्च को एग्ज़ाम है। आज मैंने GT15 दी है और जो क्वेश्चन आते थे वो आते ही थे एकदम कंफर्म, और जो नहीं आते थे ना उसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ है। तो अभी फैक्चुअल लर्निंग बहुत ज़्यादा करना है। पैरासाइट के अंडे, फिर ड्रग्स के इनिबिटर है, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे सब क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहा था। अभी ये GT की बात करूँ तो इस GT में करीब 115 से 18 क्वेश्चन पे मैं कंफर्म था, बाकी के सारे गैस मारे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कॉन्फिडेंस तो लो करेगा ये। 148 करेक्ट हुए। पिछले बार से कम हो गए ना। सो गाइस फाइनली एग्जाम डे आ गया था, और ये कुछ सीन था एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले। आपने मेरा रिएक्शन वीडियो ऑफ नीट PG 2023 एग्जाम वाला वीडियो तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। सो फाइनली मैं जो मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ ये सारे रॉ रिएक्शन वीडियो से, वो ये है कि आपका जो ग्राफ है GT का, इट विल नॉट गो अप एंड अप। There will be lots of up and down in your journey. Important is कि आप consistent हो या नहीं हो. So if you are making your day count on a regular basis, then you are definitely gonna get that seat. ठीक है? आपने देखा होगा कि मेरे हर बार कुछ 500 के ऊपर नहीं आ रहे थे। ऑलमोस्ट 6 महीने के प्रिपरेशन तक तो मेरा 430 440 क्रॉस ही नहीं हो रहा था। आप ग्राफ देख सकते हो। उसके बाद सडनली 9th of December 2022 को, मेरे को आज भी वो डेट टाइम सब याद है, जब मेरा 554 पहली बार 500 मार्क्स क्रॉस हुआ और 554 आया सीधा। लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ था इस दिन। बस रोज पुश हार्ड करना है। तो बस गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। और अभी GT का जो परफॉर्मेंस ग्राफ होता है, क्वेश्चंस कैसे रिव्यू करने हैं, रेड बुल पीना है या नहीं पीना है, कॉफी पीनी है या नहीं पीनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और GT के स्कोर्स को कैसे एनालाइज करके कैसे आपके प्रिपरेशन को मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। सो थैंक यू इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ। It really means a lot to me, and hope you have got some idea कि this is not a sprint, this is a marathon, and you have to work on regular basis, consistent रहना है, disciplined रहना है, पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। So that's it for this video guys. Meet you in the next one. Till then, take care. Bye bye. See ya.